Okay, so we'll begin this lecture. So basically, what we will do today is we will discuss about numerical differentiation. So 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 as you see, numerical differentiation has two uh, terms in it. One is numerical and other one is differentiation. This differentiation you have already studied in your earlier classes. So suppose you are given a function, some function y is equals to fx is some function which is given to you. Then the meaning of differentiation is that if there is some point x and at a delta x distance there is some point x plus delta x. So since this point lies on the function, this value is y at x, and or rather f at x, and this value is f at x plus delta x. Okay. So if I name this value as y, the point value as y, then the point value here basically is change in y. So y plus, call it as delta y. Okay. Then technically, this chord from here to here, this chord AB, this chord AB. What does this represent? This represents the slope here at this point. All right. So if I call this point as C, then you can find it out that if we think this angle as theta, then basically it is actually slope. Now, let us look at corresponding to function y is equals to x. Let us look at the quantity delta y upon delta x. So basically it represents change in y with respect to change in x, delta y divided by delta x. Now what if I do is that limit delta x, I make it tending to 0. Look at it, what will happen? If delta x tends to 0, then this point will tend towards this point. That means A will approach to point B. How will it approach to point B? Delta t tending to 0 means this point becoming smaller and smaller. So first A will reach somewhere here, then this chord will become this chord, then it will further become closer and closer, and eventually what will happen, both the point A and B will merge on each other, and that is when the chord AB will become tangent, and at that time the slope of the tangent technically
will be equals to the rate of change of y. So as you put limit delta x tending to 0, then this delta y upon delta x, this becomes your derivative dy by dx. That's why you say that dy by dx represents the slope of the tangent. Correct? And since y, we are saying y is equals to fx, so this dy by dx is nothing but f prime x, or limit delta x tending to 0. What is delta y? Change in y. This is delta y. Y at x plus delta x minus y at x divided by delta x. So this is nothing but your dy by dx, the derivative. So if a continuous function is given, if a differentiable function is given, then you can simply differentiate it and find out the derivative. However, if the data is given, then we have to find out this kind of differences, and then we have to find out this kind of values. Correct? If you also notice carefully, this delta y by delta x is nothing but AC by BC, which is nothing but slope here. Delta y by delta is nothing but slope. Is slope of AB. Slope of AB. So if you find out the slope of AB, slope is like tangent of theta, then tangent theta is equals to AC upon BC. This is what delta y by delta x. So if A tends to B, then this will become tangent, and that's why it becomes the slope of the tangent. So dy by dx becomes slope of the tangent, because as delta x tends to 0, it comes to A point comes to point B. All right. So in case of numerical differentiation, we will be given some data, and corresponding to that data, we have to find out the values of the derivatives. There are a few noteworthy things here. When you are measuring delta y, that means change in y, you are measuring at a forward point with reference to a backward point. So this is referred as your forward difference operator. So we define here, first thing first, forward difference operator. So here we choose delta x is equals to h. That means our points are basically equidistant. Okay. डेल्टा एक्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे h चूज कर रहे हैं, और जो पॉइंट्स हैं हमारे, पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस. हमें जो पॉइंट जहां पे दिया होगा इक्विडिस्टेंट x0, x1, x2 डॉट 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 xn, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन पॉइंट की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें दी हुई होगी fx0, fx1, fx2 डॉट 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 fxn, इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ होगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, x2 माइनस x1 is equals to x1 minus x0 is equals to dot 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 is equals to xn minus 1 is equals to h. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे तो वो हमेशा h के बराबर आएगी. h is equals to xi plus 1 minus xi for all i. हर एक i is equals to 0 से लगा करके n तक के लिए, 0 से लगा के n minus 1 तक के लिए, 0 लेस आर इक्वल्स टू i लेस आर इक्वल्स टू n minus 1, ये डिस्टेंस आपका h के बराबर होगा. अगर ऐसा है तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन करते हैं. दिस ट्राइंगल इज रेफर्ड एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा fxi. इसका डेफिनेशन क्या हुआ, डेल्टा fxi. fxi मतलब इसमें से कोई वैल्यू जो होगा आपका x0, x1, x2, i वो हो गया.
इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन देखो क्या है, एक यूनिट आगे बढ़िए एफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ एक्स आई। अगर आप डेल्टा एफ एक्स आई निकाल रहे हैं तो एफ एक्स आई प्लस एच वाले पॉइंट पे जाइए माइनस एफ एक्स आई, एफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ एक्स आई, माइनस एफ एक्स आई। This is called your forward difference operator. This is the definition of the forward difference operator. तो अगर हम किसी वैल्यू के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकल आएगा। सेकेंड ऑर्डर का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स आई, नेचुरली इट्स एन ऑपरेटर, सो वी कैन राइट इट डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स आई। डेल्टा एफ एक्स आई ऊपर से रख सकते हैं हम लोग, तो इट विल बिकम डेल्टा ऑफ एफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ एक्स आई। The definition says that if you have to put delta fxi, so this will become delta of fxi plus h minus delta fxi. डेल्टा fxi plus h, xi की जगह पे xi plus h रखेंगे तो यहाँ पे xi plus 2h हो जाएगा, यहाँ पे xi plus h हो जाएगा। So this will become delta fxi plus 2h minus fxi plus h minus delta fxi plus h minus plus fxi। इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा हमारा, f ऑफ xi प्लस 2h माइनस 2f xi प्लस h प्लस fxi। तो ये हमारा डेल्टा स्क्वायर fxi निकल गया। इसी तरह से सिमिलर मैनर में, सो कंटिन्यूइंग एज अबव, जैसे हमने किया हुआ है, we can calculate delta cube fxi, delta power 4 fxi and so on so forth, delta n fxi किसी भी n के लिए, for some n, delta n fxi and then so on so forth, we can do that। ठीक है ना? So we can keep on finding these values। Now, naturally there should be a question in your mind कि भाई एक क्वेश्चन होगा कि why are we finding these values? ये जो चेंजेस हैं इनको हम क्यों फाइंड कर रहे हैं आखिरकार? So as the motivation slide shows, you can see that basically this is written as your forward difference, delta y by delta x. So it's a forward difference of it. So this will be useful in finding out the derivative. इसका आंसर जो हो जाएगा because these values will play an important role जो हम लोग अभी निकालेंगे in numerically finding out derivatives when the data is given। जब हमें कोई डेटा दिया हुआ होगा तो उसमें डेरिवेटिव निकालने में इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। वी विल फाइंड डेटा, जैसे मैंने भी मेंशन किया, सो व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी गिवन। सो यूजुअली will be given the data in following format corresponding to some x values। so हमें x की वैल्यू दी हुई होंगी,
call them as x0, x1, x2, x3, x4 और वहां से हमको fx की वैल्यू मिल जाएगी। fx0 मतलब दी हुई होगी fx की वैल्यू, fx0, fx1, fx2, fx3, fx4 ऐसे करके हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी हुई होंगी, where these might be some relations. Sometimes these values might be given in some certain format. Just for example, you may recall that I have given you some data where x was the the speed of the train, and then there was the time corresponding to that train, and then I asked you to find out the speed of the train. Sorry, find out the distance between 2 points of the railway stations. So here, for example, the data, your x may represent some dates of a month, or some dates, not necessarily like every date. It can be like 1st of say January, then 10th January, then 15th January, then 20th January, then 30th January, like that. X may have that value, and corresponding fx may represent the temperature on that particular day. So you can have the temperature on that particular day. So you can be interested in finding out certain answers. Okay, so these operators, one should not just think that these operators are only useful in finding out the derivative. No, they are also useful in finding out they are also useful in finding out the values at some point between x0 and xn. जैसे x0 x1 यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, तो x0 के बीच में, x0 और x1 के बीच में जो पॉइंट होगा x0 प्लस x1/2 एक मिड पॉइंट हो सकता है, वहां पे वैल्यू पूछ रहा हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो फार्मूले अभी हम डेवलप करेंगे उनमें देखेंगे कि डेल्टा जो है हमें वो वैल्यूज भी पता करने में हेल्प करता है। ओके, कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूं। तो all of you know that if there are 2 data point given, अगर आपको केवल 2 पॉइंट दिए हुए हों, है ना, तो अगर 2 पॉइंट कहीं पर भी स्पेस पे दिए हो तो आप हमेशा उससे जाती हुई क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, आप फाइंड कर सकते हैं। I mean, you can find a curve also, but that curve may not be best fit. The best fit possible here is a straight line. अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, करेक्ट। अगर आपको इसी तरह से 4 पॉइंट दिए हो तो आप उससे एक क्यूबिक इक्वेशन को फिक्स कर सकते हैं। Why is it so? Because these are the number of parameters which are there. In case of straight line, the general form of a straight line y is equals to ax plus b. So if I give you a relation of 2 data points, then you can write corresponding to x1 the value will be y1, corresponding to x2 the value will be y2. So you will get 2 equations, and you can solve those 2 equations and get the value of a and b, and then you substitute them back here. So you will get the value of y is equals to ax plus b. That's how you can be able to fit it. So in the similar pattern, if I give you n plus 1 data points, n plus 1 data points, देखो हर एक में क्या हो रहा है, जब 2 है तो लीनियर है 1 डिग्री का, जब 2 है क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री का है, तो अगर n plus 1 होगा तो एक कम, तो आप यहां से nth डिग्री की पॉलिनोमियल को फिट कर सकते हैं। We can fit nth degree polynomial here. और वो पॉलिनोमियल क्या होगी, that polynomial will match
which will agree with the unknown function. Unknown function कौन सा है? जिससे डेटा आ रहा है. Unknown function at these points. उदाहरण के लिए आप ऐसे कंसीडर करो कि ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ 4 डेटा पॉइंट्स हैं मान लो ऐसे, और these data points are coming from some function which is of this shape. Okay, so this red color is the function. So from these data points we can fit a polynomial which will be passing through all these 4 points. So we can fix a polynomial. So this black color curve will be a polynomial. Let us call this polynomial as Pnx. जहां पे Pnx जो है वो fx के बराबर होगा कहां पे? At these points. वहां पे देखो तो ये मैच कर रहा है ना? Pnx और fx दोनों बराबर होंगे at data points. तो जब हम फिट कर रहे हैं, the polynomial which we are fitting, that may not be perfectly matching with the function, red color function fx, but it will definitely match with the point values at the point. It may also happen कि polynomial जो fpx है वो आपके fx से मैच कर जाए, अगर मान लो डेटा पॉइंट्स भी आपके पॉलिनोमियल से ही आ रहे हो तो, है ना? तो अगर डेटा पॉइंट्स पॉलिनोमियल से आ रहे होंगे तो डेफिनेटली ये मैच कर जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम हियर. ओके, so this is how we try. I hope there should be no question. So now I think you must have got your answer, Vishal. Why we use numerical representation if we can easily differentiate any function? So all the times the function is not given. Now I have given you the example here, right? And there will be always the data. So you will get all this kind of differentiation. One very simple example which you will get is while using algorithm, you will find the gradients. Gradient will use the derivative, and for the derivative, you will have to use these kind of numerical methods for that one. So I hope so far all the questions which are raised, they are answered. If not, then I will towards the end I will come again and answer them. All right. So let us begin with the first thing, that my target probably you understood, that given the data from the red curve, I want to generate a black curve, which means that given some certain data points, I want to generate a polynomial equation. Okay, so that's my target. Okay, I should be given some data and I want to generate some polynomial. So I'll begin with a very simple problem. This is referred as Lagrange's interpolation. One more important point here is that once I have this black data point, a black color curve, then I can figure out other values also in between, though there may be some error, but still I can figure out some more values which are in between. So if there is any in between value is needed, for example, somebody asked me, okay, 1st of January the temperature is this, 5th of January the temperature is this, what is the temperature on the 2nd January or 3rd January? Then I can give the temperature on the 2nd January or 3rd January.
So first thing is Lagrange's interpolation. So consider that the data which is given to us is x0 and fx0 corresponding to x0 and x1 fx1. So two data points are given. As I mentioned earlier, when there are two data points, we can always construct a straight line. If the two data points are given, we can always construct a straight line. Okay. So if the two data point is given, then my polynomial, straight line means it's a first degree polynomial. Then my polynomial, I will call it as a linear polynomial. My polynomial, and I will call it as P1. 1 stands for the degree of the polynomial. P1x is equals to A naught x plus A1. Or so now I assume, what do I assume? This black color is my linear polynomial and red color is my data point, the data from the function from where the data are coming. So I assume that the both red and black color curve agree at these data points. So I assume that P1 at x0 is fx0. That means the polynomial value at x0 matches with the fx0, and P1 at x1 is equals to fx1. That means जो डेटा पॉइंट है वहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है और जो पॉलिनोमियल जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल को कर रहा होगा, डेटा किसी से भी आ सकता है, साइन फंक्शन से भी ये डेटा आ सकता है. आपको 2 पॉइंट केवल दिए हुए हैं, वो साइन फंक्शन का भी डेटा हो सकता है. बट वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज फॉलोइंग लीनियर पॉलिनोमियल, where the linear polynomial is matching with the data point at least at those points. Then let us write. So लिखने का तरीका देखो कैसे लिख रहे हैं हम. P1x is equals to A naught x plus A1. ये हमारा अननोन एक्सप्रेशन हो गया. देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, x0 वाली वैल्यू रख देंगे. So P1 at x0 is nothing but fx0. So P1 at x0 is nothing but fx0, which is equals to a0 x0 plus a1. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. P1 at x1 is equals to fx1, which is nothing but a0 x1 plus a1. क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन. सॉल्विंग होता है जब यहां से हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैट्रिक्स फॉर्म. और एलिमिनेशन होता है कि जब हम इसको ये जो n नंबर ऑफ इक्वेशंस में से n-1 पैरामीटर्स को अगर एलिमिनेट करते हैं. सो इफ यू एलिमिनेट इट, eliminate a0 and a1 from 1 to 3. तीन इक्वेशन से अगर एलिमिनेशन करना होता है तो वो क्या वैल्यू बन जाती है हमारी, दैट बिकम्स द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. This you might have studied in your +2 or somewhere. So here the coefficient, first coefficient term is, let us say you bring everybody on the left hand side. So the first coefficient term is say -1. तो -1 का कोएफिशिएंट P1x, A0 का कोएफिशिएंट x और इसका कोएफिशिएंट 1, A1 का कोएफिशिएंट 1. सिमिलरली -fx0, तो उसको वहां पे लग हुआ है -1 का कोएफिशिएंट fx0, ये x0 और इसका कोएफिशिएंट 1. यहाँ पे fx1 x1 और 1. So basically जो कॉलम वाइज जो एंट्रीज हैं यहाँ पे अननोन को छोड़ करके बाकी जो कॉलम वाइज एंट्रीज होती हैं वो हम सब रख लेते हैं. वहां से 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया. सो दो वेरिएबल अगर आपको एलिमिनेट करना है, फॉर एग्जांपल a0 और a1 यहाँ से एलिमिनेट करना है, देन दिस विल बी अवर डिटर्मिनेंट. once we want to eliminate, you can check it other way also. You can solve a0 and a1 and then finally you substitute and then you will get this one.
So this we will get. You should be agreeing to this one. Now I'll make the slide little bigger so that we can see this slide, and I'll move to the next slide. So once I got this eliminated determinant value, what I will do is that I will expand the determinant along first column. So if I expand it along the first column, what I will get is that you can easily see it from here. First column, Px is the first entry multiplied by x0 minus x1 minus fx0 is the second entry multiplied by x minus x1 plus fx1 is the second entry, third entry multiplied by x minus x naught equals to 0. Since we are looking for Px, the polynomial here, Px or P1, we are writing it P1 actually. So let's write everywhere P1, P1. So it's also P1 and it's also, this is also P1, this is also P1. Since we are looking for P1x, what we will do is that we'll send everybody to the right hand side and then we will divide by this term x0 minus x1. So the terms when they go right hand side, write them as x minus x1 divided by x0 minus x1 fx0. This will become minus, but I want to write it as plus, so I will write it plus x minus x0 divided by this. When it will go in the denominator, it will become x0 minus x1, but since I have taken a minus sign here, so it will become x1 minus x0 fx1. This I will write it as L naught x because it's a function of x, linear function of x, fx0 plus L1 x fx1. Notice carefully that we have got a polynomial function where both the term of the polynomial function are linear functions. This L0 x is also a linear function, L1 x is also linear function. इनको हम लोग बोलते हैं L0 x और L1 x. ये हमारा कहलाते हैं Lagrange's fundamental polynomials. इनको fundamental polynomials because these polynomials are the constituting polynomials for your functional polynomial. बहुत ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी. ये जो टर्म है देखो x माइनस x1 है ना, और ये टर्म क्या है x माइनस x0. न्यूमरेटर वाले में ही आपने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x0 केवल रख दिया और यहाँ पर वो x0 वैल्यू, वही वैल्यू वहां पे फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है. डिनोमिनेटर में x की जगह पे x1 रख दिया और वहीं पर आपकी क्या हो रही है, फंक्शन वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है. तो इस तरह से आपके ये पॉलिनोमियल फाइनली कंस्टिट्यूट होकर के आ जाएंगे. So for a linear case, this is how it will happen. Now, so this is referred as the last, this expression is known as, box बना देते हैं. So this is known as Lagrange's interpolation. इस तरह से हम क्या करते हैं, Lagrange's interpolation करके polynomial function construct कर लेते हैं. Lagrange's interpolation polynomial, linear है. This is called your Lagrange's interpolation polynomial. Now suppose if पहले हमने कितने डेटा पॉइंट लिए थे, 2 लिए थे. अगर अब हमें 3 डेटा पॉइंट दिए हों, x0 fx0, x1 fx1 और x2 fx2. अगर 3 डेटा पॉइंट दिए होंगे तब क्या होगा. नाउ you may recall this is the same problem which I used for the Simpson's 1/3 rule. So if these 3 points are given, then आप अपनी पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे, P2x को क्या लिखोगे, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था. P2x हमारी कैसी हो जाएगी,
a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फिट करने की कोशिश करोगे, देन यू विल सब्स्टिट्यूट हियर x0 एंड दिस पॉलिनोमियल शुड मैच, सो आप वो सारी की सारी वैल्यूज रखोगे, तो यहाँ से एलिमिनेशन किसका हो जाएगा, a0 a1 a2 का, and that finally will give you, it's lengthy calculation, so I am avoiding that calculation, so it will finally give you p2x is equals to x minus x1 x minus x2 ओवर x नॉट माइनस x के अब x1 x नॉट आ जाएगा, x नॉट माइनस x1 इंटू x नॉट माइनस x2 fx0, यही पॉलिनोमियल याद हो हमने जो है यूज करी थी सिम्पसन्स 1/3 में, x माइनस x0 x माइनस x2 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 fx1 और लास्ट पॉइंट fx1 और लास्ट पॉइंट वैल्यू जो हो जाएगा x माइनस x0 x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x0 x2 minus x1 fx2. So I am not doing the calculation here because it's lengthy calculation, but you can check that this is the Lagrange's quadratic polynomial, interpolation polynomial, which you will find. And here these polynomials are referred as your L0x, L1x and L2x. ओके जो पहले हमने L0 L1 L2 जो नाम दी, L0 L1 जो नाम दिया था, इसमें उनका नाम ये बदल जाएगा, दैट मींस फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स हर एक केस में बदलती जाएंगी, तो लीनियर के केस में फंडामेंटल पॉलिनोमियल लीनियर है, इस केस में ये देखोगे तो जो येलो से हमने हाईलाइट किया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो सो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूले में अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है तो हमें हमेशा nth डिग्री की n पॉलिनोमियल्स मिलेंगी जिनका समेशन लैग्रेंजे पॉलिनोमियल के बराबर होगा। ये मेक सेंस? ठीक है, so far so good. Why are we eliminating? भाई आपको वो पता नहीं है तो उनको आप एलिमिनेट ही तो करोगे ना, कैसे करोगे? आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको पता नहीं है, क्या ही करूं इसका मैं। सो बेसिक चीज है कि हमें डेटा दिया हुआ है और हम उससे पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब हमें पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है तो कुछ भी डेटा दिया होगा तो ये कर्व फिटिंग जैसा है ना, पहले भी कर्व फिटिंग किया होगा आपने, तो आपको कर्व फिटिंग जैसा काम करना है। सो इफ यू आर constructing a polynomial from the data, then how will you do that? है ना? Anyways, this was just a yes. Anyways, this was just a passing. The more important polynomial fitting is going to come here onwards. तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें पॉलिनोमियल फिट करना है डेटा से। अगर हमें कोई डेटा दिया हुआ है तो वहां से अगर दो डेटा दिए हुए हैं, अगर दो डेटा दिए हुए हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल फिट होगी, अगर तीन डेटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिट होगी, चार डेटा दिया हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फिट होगी, तो ऐसे करके अगर n+1 डेटा दिया होगा तो nth डिग्री की पॉलिनोमियल फिट होगी, है ना? That is what now probably we have understood at least this much, that this is how the polynomials will fit. The next which I am going to discuss is referred as Newton's interpolation. The basic difference between this Newton's interpolation and the previous Lagrange's interpolation ये है, इसमें जो पॉलिनोमियल है देखो तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक, तो तीनों टर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जबकि न्यूटन वाले में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। ओके, so that will become very easy. Okay, so again we recall what we have done here, and we will try to see that how this actually reaches here. तो ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है आपकी, है ना, इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम दोबारा देख सकते हैं। सो अगेन हमारे पास में 3 डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, so now we are going to construct the Newton's interpolation. स्टोरी सेम है हमारे पास में, x0 fx0 ये एक पॉइंट है, और x1 fx1 ये दूसरा पॉइंट है। इससे जाता हुआ हम एक लीनियर पॉलिनोमियल p1 फिट करना चाहते हैं, जो कि a0x प्लस a1 जैसे इस फॉर्म का हो। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, a0 a1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा उन इक्वेशंस के पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, और ये हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन किया था। नाउ वी विल एक्सपैंड along फर्स्ट रो। पहली रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो अगर पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, p1x, ठीक है, इंटू x0 माइनस x1, पहला टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस x इंटू fx0 माइनस fx1 प्लस 1 इंटू x0 x1 fx0 माइनस x0 fx1। आई होप डिटरमिनेंट तो सभी को याद होगा ना, इसमें तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So this is what you will get from here. Okay, now you divide throughout, go to the next slide, and divide throughout by x0 minus x1 so that you get p1x. p1x is equals to, ध्यान से देखो कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। हमारा क्लेम है कि p1x जो है fx0 प्लस fx1 माइनस fx0 ओवर x1 माइनस x0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्लाइड में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, मेरा क्लेम ये है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, जो इक्वेशन ब्लू कलर में लिखी हुई है और जो हमने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। वन मोर, यहाँ पे एक टर्म वेरिएबल नहीं है, हाँ अब दोनों बराबर। तो ब्लैक कलर में जो हमने लिखा और जो ब्लू कलर में लिखा है, मेरा क्लेम ये है कि दोनों चीजें बराबर हैं। तो एक बार करके देखते हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है, p1x x0 माइनस x1, इसको इक्वल टू में लिए चले जाओ और सारे टर्म्स को एक्सपेंड कर लो। x fx0, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तभी तो जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस x fx1, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएंगे, माइनस x1 fx0 प्लस x0 fx1। ये इसमें तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ब्लू कलर वाले टर्म है। अब ब्लैक कलर वाले टर्म्स को देख लो ध्यान से। तो इसमें अगर हम x1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x1 माइनस x0 p1x, पूरे को जो है x1 माइनस x0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले fx0 से, तो बन जाएगा x1 fx0, जब यहां से मल्टीप्लाई होगा माइनस x0 fx0। ठीक है, इसमें से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस x0 और fx1 माइनस fx0।
तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो x टाइम fx1 माइनस x टाइम fx0 माइनस x0 टाइम्स fx1 प्लस x0 टाइम्स fx0। ये x0 टाइम fx0, ये x0 टाइम fx0 कैंसिल हो रहा है। अब देखो क्या दोनों ब्लू और ब्लैक जो है मैच कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों में, P1 x1 माइनस x0, x इसमें x0 माइनस x1 है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे टर्म का जो साइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखो तो -1 टाइम है। ओके, वो भी लिख लेते हैं चलो, जस्ट अपने ईज के लिए। P1 x0 माइनस x1, तो हमारे टर्म सारे नेगेटिव हो जाएंगे। x1 fx0, आगे वाला टर्म ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x fx1 प्लस x fx0 प्लस x0 fx1। अब मैच करके देखते हैं। x1 fx0, ये देखो यहाँ पे x1 fx0 तीसरे नंबर पे जो टर्म लिखा हुआ है मैच कर गया। x fx1 दूसरे नंबर पे लिखा हुआ माइनस का, ये भी मैच कर गया। x fx0 पहले नंबर पे लिखा, ये भी मैच कर गया। x0 fx1 ये भी मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है और जो ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, वो दोनों सेम चीज है। ठीक है, कॉल इट एज ए स्टार इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, so we have generated a polynomial now, so finally this is referred as ग्रेगरी न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला, जो हम अभी बताएंगे डिटेल में। अभी के लिए हमारा क्या हो गया, P1x हमने एक पॉलिनोमियल बना दी जो कांस्टेंट, पहला टर्म कांस्टेंट है देखो, और दूसरा टर्म क्या है, x का कोएफिशिएंट है ना, प्लस लीनियर। तो ये दूसरी तरीके से हमने यहाँ पॉलिनोमियल बना दिया, कांस्टेंट टर्म a0 प्लस a1x जैसा, है ना। लैग्रेंज में क्या हो रहा था, दोनों के दोनों जो है वो लीनियर करके सम हो रहे थे, यहाँ पे कांस्टेंट और लीनियर बना करके कर रहे हैं। सो दिस इज हेल्पफुल, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है फर्दर कैलकुलेशन करने में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्पफुल है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बताइए कहाँ पे कुछ रिपीट करना है। ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई तो फॉर्म करेक्ट, अगर आप उस फॉर्म में देखेंगे, लाइन के फॉर्म में देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, स्लोप वाले इक्वेशन से ही आ रहा है। एब्सोल्युटली, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट निखिल। ठीक है, हमने कुछ खास नहीं किया। लेट मी रिपीट दिस वन। न्यूटन्स इंटरपोलेशन में हमारी कोशिश क्या है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जिस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है इसी फॉर्म में हम चाहते हैं इसको। P1 को हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक ऐसे से करके आती रहे। तो फॉर दैट आपको दिख रहे हैं ना, सारे पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं वो सब कहाँ पे आ रहे हैं, आपके फर्स्ट रो में आ रहे हैं। दैट इज वाई वी एक्सपैंड देम अलोंग द फर्स्ट रो, बिकॉज नीचे वाले सारे टर्म्स तो कुछ कांस्टेंट है, वो नंबर्स होंगे। तो हमने इसीलिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करने पर हमें ये इक्वेशन मिली जो ब्लू कलर में है, और ब्लू कलर वाली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके, बिकॉज हमें उसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए था, तो हमने उसको इस फॉर्म में एडजस्ट कर लिया हुआ है। एज समबडी पॉइंटेड आउट कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो है वो फॉर्म है, तो हमने उसको उसी में कर लिया। सिंस वी आर नॉट डीलिंग विद इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली, आई एम नॉट मेंशनिंग, I did not mention it that way, rather I have mentioned it in this way that it is a constant plus linear। तो अगर आगे जाकर के हम करेंगे तो कांस्टेंट प्लस लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक होगा। रिगार्डिंग दिस स्टार इक्वेशन हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। देखो जो ब्लैक कलर में इक्वेशन लिखी हुई है उसका यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना x1 माइनस x0, तो x1 माइनस x0 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो x1 माइनस x0 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, और उसके बाद में वो दो टर्म कैंसिल हो गए। और फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हमको बराबर करनी थी ब्लू और ब्लैक इक्वेशन की, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्लैक इक्वेशन में। तो पूरी ब्लैक इक्वेशन में जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड भी मैच कर गई जो ब्लू इक्वेशन की है। तो हम यहाँ से ये क्लेम कर रहे हैं कि बिकॉज दिस ब्लैक इक्वेशन आई हैव गॉट फ्रॉम दिस ब्लैक बॉक्स इक्वेशन, स्टार इक्वेशन,
तो मेरा एक क्लेम है कि जो ब्लू इक्वेशन है इज नथिंग बट द ब्लैक इक्वेशन. आई होप इट मेक्स सेंस नाउ. Yes, so multiple times we think about the convenience, but there are, what these are building blocks. We are not going to write फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल. फर्स्ट डिग्री लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है. फर्स्ट डिग्री लिखना होता तो हम तो y = mx + c से कभी का निकाल चुके होते. हमारी प्रॉब्लम है जब हमें 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऐसे दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, है ना. तब हमें अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे. ओके, so for that these methods which I am going to discuss, they will be handy. Okay, so now why did I convert myself into this star format? Because I wanted to use the delta function. So p1x अभी जो आपका फार्मूला आ रहा है उसको ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, fx0 plus fx1. What is fx1? fx1 is nothing but f of x0 plus h minus fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0. x1 माइनस x0 का वैल्यू जो है, अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट ले लेंगे तो वो h हो जाएगा, x माइनस x0. सो वी कैन मेंशन हियर, अभी तक हमने कहीं पे वो नहीं किया था, इफ वी सेलेक्ट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, अगर हम क्या करें, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें. इक्विडिस्टेंट पॉइंट मतलब xi + 1 और xi के बीच का जो डिफरेंस है वो h हो जाए. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर हम xi + 1 और xi के डिफरेंस का जो है वो बराबर ले लें फॉर ऑल i, हर एक i के लिए, तो जो न्यूटन्स फार्मूला जो हमने भी बताया हुआ है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नोटिस केयरफुली, दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा fx0 ओवर h. So this will become fx0 plus x minus x0 को हम आगे ले आते हैं, x minus x0 डिवाइडेड बाई h डेल्टा fx0. तो ये हमारा बन गया p1x. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी फिट हो रही है न्यूटन्स ग्रेगरी, इसको बोलते हैं ग्रेगरी न्यूटन, GREGORY, ग्रेगरी न्यूटन फाइनाइट डिफरेंस इंटरपोलेशन. ये हमारा जो है ग्रेगरी न्यूटन फाइनाइट डिफरेंस इंटरपोलेशन होता है. ये लीनियर है, ध्यान से देखना हमें यहाँ पे, दिस इज लीनियर. नाउ व्हाट कैन वी डू, अगर हमें ये तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए थे तो हमने एक लीनियर बना दिया, है ना. अगर इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोसेस को, तो हमें क्या होगा. तो सपोज अगर हमें क्वेश्चन इज कि कैन वी फाइंड pnx, nth डिग्री की पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं क्या. कैन वी फाइंड pnx अगर हमें क्या हो, x0 fx0 x1 fx1 डॉट 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 xn fxn. x0 से xn मतलब ये कितने डेटा पॉइंट है, n+1 डेटा पॉइंट है. अगर ये सारे के सारे हमें डेटा पॉइंट्स दिए हों और ये सब कैसे हों, इक्विडिस्टेंट, मतलब उनके बीच का जो दूरी है वो सबका अगर बराबर हो, तो क्या हम एक कोई pnx पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, राइट. तो दैट इज द क्वेश्चन. तो उसका आंसर होता है कि यस, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ध्यान से देखो कैसे करेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, पुराना वाला जितना भी है सब कुछ यू कैन थिंक अबाउट कि उसको हम पीछे हटा करके देखते हैं कि नया अब हम कैसे जो है nth डिग्री की पॉलिनोमियल फॉर्मुलेट करते हैं. हाउ कैन वी फॉर्मुलेट एन nth डिग्री पॉलिनोमियल. देखो ध्यान से, ठीक है ना. So now we are going to formulate an nth degree polynomial जो
n+1 पॉइंट से होकर के जाएगी। सो कंसीडर, इसको इस यहां से बहुत ध्यान से देखो, पुराना वाला अगर बहुत ज्यादा नहीं भी समझ में आया है, देन इट शुड नॉट मैटर, जो यहां पे है इट इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओल्ड वन, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, नॉट कंप्लीटली बट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। कंसीडर x0 fx0, ये हमारा डेटा पॉइंट हो जाएगा, x1 fx1 डॉट 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 xn fxn, जो हमने क्वेश्चन रेज किया था अभी इस स्लाइड में, उस क्वेश्चन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। ये हमारे कितने हैं, n+1 डेटा पॉइंट्स हैं, n+1 डेटा, और वो कैसे डेटा है, ये सारे के सारे इक्विडिस्टेंट हैं, दैट वी हैव टू कंसीडर। all these data points are equidistant, okay, that means for all I, xi plus 1 minus xi वो आपका h के बराबर होता है। x1 में से x0 घटाओगे तो h मिलेगा, xn में से xn minus 1 घटाओगे तो h मिलेगा। So that is what you have to assume, that all these data points are having this h difference. Is that clear? Now aim is to find a polynomial, n+1 डेटा पॉइंट से तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, pnx, nth डिग्री पॉलिनोमियल। जहां पे pnx जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो हम लिख दे रहे हैं a0 कांस्टेंट, a1x लीनियर, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, a1x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला जो an होगा वो क्या होगा, x माइनस x0 x माइनस x1 से लगा करके x माइनस xn माइनस 1। जब यहाँ पे 1 है तो देखो यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे 2 है तो लास्ट टर्म 1 है, तो जब यहाँ पे n होगा तो लास्ट टर्म यहाँ पे n माइनस 1 होगा। वैसे भी यहाँ से समझ सकते हो, जीरो से लगे टोटल कितने मल्टीपल्स हैं, टोटल n मल्टीपल्स होंगे। तो ये इसकी 0 डिग्री, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो इसकी डिग्री लास्ट टर्म की डिग्री n। इस तरह का हम यहाँ पे पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, सच दैट क्या है कि जो Pn(x_i) है वो fxi के बराबर है, I equals to 0 to n। That means Pnx0 is equals to fx0, Pnx1 is equals to fx1, Pn ऐसे करके वो सारे के सारे वैल्यूज जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो रख करके देख लेते हैं। सो एट x is equals to x0, सबसे पहले x is equals to x0 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, Pnx0। Pnx0 यहाँ से राइट हैंड साइड में देखो, Pnx0 क्या होगा, a0, x is equals to x0 रखोगे, पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x0 रखोगे दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल a0 मिलेगा ना, a0। और Pnx0 की वैल्यू यहाँ ऊपर वाले इस वाले रिलेशन से क्या है, वो fx0 है। तो दिस विल इंप्लाई दैट a0 is equals to fx0, a0 की यहां से वैल्यू निकल आई। अब एट x is equal to x1 देखोगे तब क्या होगा, Pnx1 पॉलिनोमियल से Pnx1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, a0 प्लस a1, x की जगह पे x1 रखोगे, x1 माइनस x0 प्लस a2 में जब यहाँ पे x1 माइनस x0 रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगला टर्म देखोगे तो x1 माइनस x1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल Pnx1 की वैल्यू क्या है, fx1 के बराबर है। तो दिस विल इंप्लाई दैट a0 की वैल्यू आपको पहले से पता है, a0 इज फ्रॉम अबव fx0, दिस विल इंप्लाई दैट fx0 प्लस a1 टाइम्स x1 माइनस x0 की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पे मानी हुई है ना, देखो xi प्लस h माइनस xi वो h के बराबर है, तो x1 और x0 के बीच का जो गैप है वो कितना है, h है। a1 टाइम्स h इज इक्वल्स टू
fx1 हो जाएगा यहाँ से, which will imply that यहाँ से a1 की वैल्यू निकल आएगी. This will imply that a1 is equals to fx1 minus fx0 divided by h, and this fx1 minus fx0 is nothing but delta fx0 divided by h. ठीक है, तो ये a0 की वैल्यू निकल आई, ये a1 की वैल्यू देखो निकल आई. सिमिलरली एक बार और करेंगे, फिर बाकी इसी को जनरलाइज कर देंगे. एट x इज इक्वल्स टू x2 pn x2. pn x2 की वैल्यू क्या है आपकी? a0 प्लस a1 x2 माइनस x0 प्लस a2 x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, और आगे के सारे टर्म्स यहाँ पे वैनिश हो जाएंगे. और इसकी वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट वो fx2 के बराबर है. a0 की वैल्यू आपको पता है, a1 की वैल्यू पता है, x2 माइनस x0 की वैल्यू यहाँ पे 2h हो जाएगी, ये वैल्यू 2h हो जाएगी, ये वैल्यू 2h हो जाएगी, ये वैल्यू h हो जाएगी. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, a2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी. a2 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर. जब आप निकालोगे वैल्यू तो आपका वहां पे फॉर्मूला आएगा fx2 माइनस 2fx1 प्लस fx0, ऐसे करके वहां से फॉर्मूला आएगा जो आप निकाल सकते हो. डेल्टा स्क्वायर fx0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू h स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी a2 की. तो इसी को अगर हम जनरलाइज करते चले जाएंगे तो जो an की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी डेल्टा n fx0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल h रेज टू पावर n. ठीक है, this is how you will get these. सो हमें देखो क्या हो गया, a0 की मिल गई वैल्यू, a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई, ये सारी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वंस आई सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, व्हाट डू आई गेट? pnx. pnx में हमने जो हमने पॉलिनोमियल फिट करी, वो डेटा वाली वो नहीं है, वो एक्चुअल पॉलिनोमियल नहीं है. हमने जब पॉलिनोमियल फिट करी तो उसकी वैल्यू आ गई pnx इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज ऐसे रखते चले जाओगे आप. सबसे पहले a0 की वैल्यू आपकी कितनी है? fx0. Let me make it little bigger so that you can see both the things. ये a0 की जगह पे हमने fx0 रख दिया, प्लस x माइनस x0 और a1 की वैल्यू है डेल्टा fx0 अपॉन h, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस x0 अपॉन h डेल्टा fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर fx0. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस x माइनस x0 लास्ट टर्म x माइनस x1 डॉट 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 प्रोडक्ट x माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h रेज टू पावर n डेल्टा n fx0. ये फार्मूला ही हमें फाइंड करना था. So this is the formula which I was trying to find out in today's class. This is Gregory Newton forward. Since we are using forward difference operator, forward finite difference interpolation फार्मूला. शॉर्ट में जो है हम लोग इसको कई बार बोल देते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. तो इसको हम लोग जो है ये वाला फाइंड कर रहे थे. पिछली स्लाइड एक बार मैं दिखा देता हूं. ये वैल्यू pn एट x2 a0 fx0 है, a1 आपका पिछली स्लाइड से fx1 माइनस fx0 अपॉन h, इसको यहाँ पे रखोगे तो वो मिलेगा आपको
you can see that one. I can make this calculation a bit here. छोटा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूं. A0 का वैल्यू fx0, A1 का वैल्यू ऊपर से रखेंगे डेल्टा fx0, या ये वाला वैल्यू रख देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, प्लस fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई h. ये A1 का वैल्यू हो गया, और x2 माइनस x0 का वैल्यू 2h हो जाएगा, 2h हो गया, प्लस A2 प्लस A2 2h, और h का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, एंड दैट होल वैल्यू इक्वल्स टू fx2. देखो तो ये h कैंसिल हो जाएगा यहां से, है ना. अब जब आप भेजोगे यहां पे तो प्लस का fx0 यहां पे है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, प्लस का fx0 है, माइनस के 2 भी तो है यहाँ पे, ये 2 है माइनस, माइनस का 2fx0, तो यहाँ पे माइनस का एक fx0 मिलेगा, और 2fx1 प्लस का मिलेगा. तो जब उसको राइट हैंड साइड में भेजोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, fx2 माइनस, विच आई एम राइटिंग हियर, fx2 माइनस 2fx1 प्लस fx0 divided by 2 factorial into h square, and this is nothing but, ये वाला जो अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा स्क्वायर fx0 है. वो हमें कैसे पता चला कि ये डेल्टा स्क्वायर fx0, ये हमने आपको डेल्टा स्क्वायर की जब डेफिनेशन बताई थी, वहां से देखो, वेयर इज द डेल्टा स्क्वायर, इट इज हियर, डेल्टा स्क्वायर fx0, तो वो कितना हो जाएगा, x0 प्लस 2h, दैट मीन्स x2 माइनस 2x0 प्लस h, दैट इज x1 प्लस x0. सो डेल्टा स्क्वायर fx0 क्या हो जाएगा आपका, fx2 माइनस 2fx1 प्लस fx0. वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, fx2 माइनस 2fx1 प्लस fx0, दैट बिकम्स योर डेल्टा स्क्वायर fx0, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर. ये स्लाइड काफी डिटेल्ड है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड के अंदर में रखी हुई है. सो देखने में तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रही होंगी चीजें, बट लाइफ इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, वी विल मेक द थिंग्स इजियर. सो फाइनली हमें जब ये फार्मूला मिल गया, अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हमें लग रहा है ना, कि वो डेल्टा fx1 ऐसे निकालेंगे और डेल्टा स्क्वायर fx1 निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, है ना. नॉट दैट डिफिकल्ट. एक क्वेश्चन पहले लेकर के हम लोग देखते हैं, ठीक है. एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं सबसे पहले कि इसको हम लोग कैसे करेंगे. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा जो यूज कर रहा हूं, मैं आपको उसका फंक्शन भी बता रहा हूं कि मैं कौन सा डेटा यूज कर रहा हूं, ठीक है. आई एम नॉट यूजिंग एनी नॉन लीनियर फंक्शन, आई मीन एनी कॉम्प्लिकेटेड नॉन लीनियर फंक्शन, रादर आई एम जस्ट यूजिंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन. तो मान लो x की वैल्यू 1, 2 और 3 ले लें, तो करेस्पॉन्डिंग हम फंक्शन जो यूज कर रहे हैं वो हम ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर प्लस 3 12 हो जाएगा. तो हमारा जो डेटा है वो ये हो गया, ठीक है ना. नेचुरली आपको 3 पॉइंट है, तो यहां से जाती हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलनी चाहिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो लगाना चाहते हैं, जो ये वाला फार्मूला जो हमने अभी डिराइव किया हुआ है. सो वी वांट टू यूज दिस फार्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द वैल्यूज. So first of all, we identified the values. Okay. So this value is x0. Let us write them explicitly. x0 is equals to 1. x1 is equals to 2. x3 is equals to 2. These data are equidistant. क्योंकि 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 1. 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1. सो यहाँ पे h कितना हो गया, h is equals to 1. सब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, ठीक है. देन ओनली आप कर सकते हो. लैग्रेंजे में इक्विडिस्टेंट होना जो है वो हमने नहीं कंपल्सन किया था, यहाँ पर इक्विडिस्टेंट होना जो है वो जरूरी है. लैग्रेंजे हमारा जो अगर इक्विडिस्टेंट नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाता.
अब fx0 का वैल्यू देखो कितना है 2, fx1 का वैल्यू कितना है 6 और fx2 का वैल्यू x0 x1 x2 लिखना है यहाँ पे x2, fx2 का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, तो आपको fx0 मिल गया, fx1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा fx2 प्लस सॉरी fx0 प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h डेल्टा fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर fx0। ये हमारी पॉलिनोमियल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फार्मूले से। उसके लिए देखो तो हमें क्या पता चलना चाहिए, x0 पता है, fx0 पता है, h पता है, सब कुछ पता है। नहीं, क्या पता है हमें, डेल्टा fx0। तो उन वैल्यूज को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा fx0 आपको फार्मूला बताया था हमने, डेल्टा fx0 क्या हुआ, f ऑफ x0 प्लस h दैट इज fx1 माइनस fx0। अप्लाई द फार्मूला fx0 प्लस h। भाई डेल्टा fx0 का फार्मूला वो भी लिख देते हैं। डेल्टा fx0, डेल्टा fxi का फार्मूला तो हमने बताया था ना। डेल्टा fxi क्या होता है, fxi प्लस h, ये बन जाएगा fx0 प्लस h माइनस fx0, राइट। तो ये इसका h आपका कितना है 1 है, x0 कितना है वो भी 1 है। तो अगर डेल्टा x0 की वैल्यू आप 1 रख दो तो डेल्टा f1 वो कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस f1, यही तो होगा। f ऑफ 1 प्लस 1 मतलब क्या हुआ, f2 माइनस f1। f2 कौन होगा, x1 की जगह पे जब 2 रखोगे तो यही तो होगा। तो f2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। सो डेल्टा f1 की ये वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू निकालनी है डेल्टा स्क्वायर f1। डेल्टा स्क्वायर f1 का फार्मूला, डेल्टा स्क्वायर fx का फार्मूला तो हमें याद है ना। ये देखो डेल्टा स्क्वायर fx i का फार्मूला है xi प्लस 2h माइनस 2fxi प्लस h प्लस fxi। तो डेल्टा स्क्वायर fx0 सो डेल्टा स्क्वायर, फिर वही फार्मूला लिख दीजिए, fx0 का फार्मूला क्या होगा, f ऑफ x0 प्लस 2h माइनस 2fx0 प्लस h प्लस fx प्लस fx0। फिर से वही है, x0 की वैल्यू आपकी 1 है, h की वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 माइनस 2 f2 प्लस f1। f3 की वैल्यू यहाँ से देखो, f3 की वैल्यू 12 है, f3 की वैल्यू 12 हो गई माइनस 2 टाइम्स f1, 2 टाइम्स f1 की वैल्यू 2 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स f2 सॉरी fx1, 2 टाइम्स f2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और f एट x0 इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू आपकी 2 है। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 2। तो डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू आपको मिल गई 2, डेल्टा fx0 की वैल्यू मिल गई आपको 4। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सबसे पहले fx0 दैट इज f1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू डेल्टा f1 प्लस x minus 1, x0 is 1, x1 is x minus 2 divided by 2 factorial h square is 1 into delta square f1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। f1 x0 is equals to 1, so f1 is equals to 2 plus x minus 1 डेल्टा f1 ये वैल्यू यहां से निकाली है 4 प्लस x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into x minus 2 अपॉन 2, और ये डेल्टा स्क्वायर f1 की वैल्यू 2 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप जब इसको कैलकुलेट करके देखोगे सारा कुछ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x करके मिलेगा और प्लस 2 मिलेगा। वो सारे जो कांस्टेंट वाले टर्म सब कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा। वही पॉलिनोमियल फंक्शन आपको जो है
यहां पे मिल रहा था। करेक्ट? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? F1 is equals to 2, F3 is equal to 11, F1 is equals to 2. I can't understand. What is the problem? Can someone raise your hand? Where is the problem? Ujjwal, is there any problems anywhere? Okay. So I hope everything is all right with everyone. Because this is very important. If you have not understood, then there will be problem. Sir, in the very first line, x2 is equals to 3. Let me just see. Yes, x2 is equals to 3. वो पहले मैंने x3 लिख दिया था गलती से, वो x2 है. करेक्ट कर दिया था बीच में मैंने. x2 is equals to 2. How? x2 is equals to 2. अच्छा, ये गलती है. Yes, 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 you are right. x2 is equals to 3. 1, 2, 3. अब देखो क्या हो रहा है. x2 is equals to 3. यहां पे तो सही किया हमने, उसको 3 रखा. I have made a mistake here. So yes, rest everything is fine. Only here there is a correction. Yes, since that is not playing a key role, though उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ. But yes, you are right. x2 is equals to 3. Correct, correct, correct. Now everything is fine. Correct. This is F3. So this is F3 now, na? So F3 is equals to 12. x2 की value 3, F3 की value 12. The function value of F3 is 12. So that's why we have substituted here F3 is equals to 12. F3 11 क्यों होगा भाई? x square plus x करो, 3 3 is 9 plus 3 12. ठीक है. एक बार कैलकुलेशन करके देखो. It's enough for today. Yeah, I know. So now I will do very easy things. Okay, now I will do very easy things. तो जब हमें प्रॉब्लम रिजॉल्व, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी ना, तो ऐसे करेंगे तब तो हमारा पूरा, जैसे अभी तुम्हारा हो गया ना, some of you are getting tired of processing the entire information. Now please hold on a minute. I will answer the questions if there is anything, or in tomorrow's tutorial session I will answer that one. I will address that one if there is any mistake. Okay, so we will address that one. Don't worry. I think everything is correct, but still if there is any mistake, then we will handle it. Please focus what I am trying to convey here. अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे होंगे तब तो हम परेशान हो जाएंगे ना. इसमें तो 3 ही डेटा पॉइंट थे, अगर 4 5 होंगे तब तो हमारे लिए बहुत हालत खराब हो जाएगी.
सो उसके लिए क्या होता है, वी एक्चुअली डोंट वर्क इन दिस मैनर. इंस्टेड व्हाट वी डू इज दैट वी कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड. ये ध्यान देने वाली चीज है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. ये बहुत ध्यान से देखो कैसे बनती है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का. x की जो वैल्यूज दी होती हैं, fx की जो वैल्यूज दी होती हैं, सपोज हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, x की वैल्यू में 1 2 3 4 5. प्लीज पे योर अटेंशन, ओके, कंप्लीट अटेंशन हियर, फॉरगेट व्हाटएवर इज देयर अर्लियर. और fx की वैल्यू हमें दी है 1 8 27 64 एंड 125. मान लो ये वैल्यूज हमें दी हुई हो, ठीक है. Then the forward difference table is constructed by finding out delta fx in the next column. By definition delta fx का मतलब क्या होता है, ये आपका x0 है ना. इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये x1 है. इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है, ठीक है. तो ये fx की वैल्यू हो गई, तो ये वाली जो वैल्यू 1 हो गई वो क्या आ गई, fx1 और fx0. 1 इज इक्वल टू fx0 और ये 8 कितना हो गया, fx1, ये वैल्यू fx0 और ये वैल्यू fx1. तो अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालें fx1 माइनस fx0, तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा fx0 इज इक्वल्स टू fx1 माइनस fx0. यही तो फॉर्मूला बता रहा था. सो वी डोंट फाइंड इट इन दिस वे, वी जस्ट राइट दीज एंट्रीज हियर. देखो कैसे करते हैं. 8 और 1 में से डिफरेंस लोगे तो क्या बचेगा हमें यहाँ पे, 7. 27 और 8 का डिफरेंस लोगे तो क्या बचेगा हमारा, 19. 64 और 27 का डिफरेंस लोगे तो क्या बचेगा हमारा, 37. इसका डिफरेंस लेके तो क्या बचेगा, 61. So here this becomes our fx0 and this becomes our delta fx0. ये जो एंट्री है हमारी, ये क्या है, डेल्टा fx0, जो पहली एंट्री है, डेल्टा fx0. एंड देन वी कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस. इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 12. इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या बनेगा, 18. इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या बनेगा, 24. ये एंट्री बोलते हैं इसको डेल्टा स्क्वायर fx. दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द टेबल. सबके डिफरेंसेस लेते जा रहे हैं. फिर इनका डिफरेंस ले लिया 6, इनका डिफरेंस ले लिया 6. ये हमारा हो गया डेल्टा क्यूब fx. और अगली इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे, डेल्टा 4fx. डेल्टा 4fx हमारा, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0. द फर्स्ट एंट्री in each column is basically corresponding to fx0. तो ये डेल्टा fx0 हो गया, ये डेल्टा स्क्वायर fx0 हो गया, ये डेल्टा क्यूब fx0 हो गया और ये डेल्टा पावर 4 fx0 हो गया. So this is how we construct the table. ये समझ में आ गया. गुड, ठीक है. तो ये मैं एक एक्सरसाइज लिख के दे देता हूं, इसको आप थोड़ा सा करिएगा, है ना. इसकी टेबल बनाइएगा, नॉट नाउ, आफ्टर द क्लास. x fx 1 2 3 4. Notice that all the points are equidistant, 1 8 27 and 64. ठीक है. सपोज इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. सपोज हमारा ये डेटा दिया हुआ है x और ये fx. 3 का वैल्यू corresponding to 3 the value is 6, corresponding to 4 the value is 24, corresponding to 5 the value is 60, and corresponding to 6 the value is 120.
The question is find polynomial fx is equals to pnx. तो pnx जो पॉलिनोमियल है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए फॉरवर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉन्स्टिट्यूट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। x की वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने भी बताया fx की वैल्यू रखेंगे। ओके, x की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5 एंड 6। fx की वैल्यू क्या है, 6, 24, 60 एंड 120। सबसे पहला एंट्री क्या आएगा, डेल्टा fx। डेल्टा fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, नोटिस केयरफुली, 18, यहाँ पे कितना आएगा 36 और यहाँ पे कितना आएगा 60। डेल्टा स्क्वायर fx, इसका जब वैल्यू निकालेंगे 18 और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 24। डेल्टा क्यूब fx, दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें क्या करना है, pnx फाइंड करना है। कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 पॉइंट है, मतलब क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां से फिट हो रही होगी। So let us see. So apply Newton's इंटरपोलेशन, ग्रेगरी न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। So what does the formula say? फॉर्मूला कहता है कि px जो पॉलिनोमियल है, pnx जो भी whatever degree it will come eventually, फॉर्मूला कहता है कि it is fx0 plus x minus x0 divided by h delta fx0 plus x minus x0 x minus x1 divided by h square into 2 factorial delta square fx0 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 over 3 factorial means 6 h cube delta cube fx0, कितने तक वैल्यू आई है हमारे पास में, डेल्टा क्यूब तक है। डेल्टा की पावर 4 देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो वी विल नॉट राइट दोस टर्म्स। यहां से जैसे मैंने तुम्हें बताया, डेल्टा fx0 का वैल्यू, बिकॉज दिस इज x0 is 3, डेल्टा fx0 6, डेल्टा स्क्वायर fx0 सॉरी x0 is 3, fx0 is 6, delta fx0 is 18, delta square fx0 is 18, delta cube fx0 is 6. Can you identify that? Okay, so if I write the values, fx0 is 6, x0 is 3, okay, plus x minus 3 divided by h is 1. You see the data is equidistant, 3 4 5 6, h is 1 into delta fx0, that is 18, plus x minus x0 3, x minus x1 4 divided by 2 into h square is 1 into delta square fx0, again 18, plus x minus 3 x0, x minus x1, x minus 4, x minus x2, x minus 5. Notice carefully, x0, x1, x2, x3, right? All these values you substitute. 3 factorial means 6 into h cube, again 1 cube, here 1 square, into finally delta cube value, that is 6. See, the calculation is very simple. This gets cancelled with this fellow. 2 gets cancelled here, 9. Here, 18. So you will get 6 plus 18x minus 54. Plus what you get here is that 9x square minus 63x plus 12. What you will get from here, x square minus 7x plus 12. So you will get x cube minus 7x square plus 12x minus
5x square plus 35x minus 60. Simplify. First, you see the cubic term is here, x cube, okay? Then the square term, how many square? 9x square is there, minus 7x square is there, minus 5x square is there. 7, 5, 12. 12 negative, 9 positive. So, minus 3x square. 18x is here, 63x is here, 35x is here, 12x is here. So 35 plus 12 makes is 37, 39. And 39 plus 18, 39, 8, 57. 57, correct? 35, 37, 39, 47, 57. कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे. This is correct, 18x, okay, and this okay, let's see the constant term here. So what is coming here is minus 54. This should actually get cancelled. Minus 64, 6, 12, minus 60. थोड़ा कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है. सेकेंड लाइन में 12 की जगह पे 108 होगा. कहाँ पे भाई? सेकेंड लाइन में 12 की जगह पे 108 होगा. ओ 108, यस करेक्ट. हियर यहाँ पे गलती हो गई. 108. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. So it is let us see if the values are correct substituted, so that you have to write it quickly. Okay, शायद सब कुछ ठीक है. 6 कैसे हो गया यहाँ पे? 24, 36 होगा ना? 6, 18, 18, 6. That is how we are substituting. 6, 18, 18, and 6. So far so good. Okay, so 6, 18, 54. So here up till this point everything is correct. 9x square minus 9 into 7, 63x, 4 3 are 12, 12 9 108. So यहाँ तक सब कुछ ठीक है. लास्ट टर्म में थोड़ा सा कुछ हो सकता है. तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ये तो भी मैंने सही लिखा हुआ है. तो ये एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x, यानी ये टर्म भी सही लिखा हुआ है. 5x स्क्वायर नेगेटिव साइड में प्लस 35x प्लस माइनस 60, ये भी सही लिखा हुआ है. तो सारा कुछ ठीक है. आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ, राइट? So everything is correct now, right? So you should check this one. So let's write what values we are getting. So plus 18x plus 18x minus 63 and plus 12. So 12 here and plus 35
plus 35. So 18, 12, 30, and then 30, 30, 65 plus 65 minus 63. So plus 65 minus 63 makes it 2x. Okay, 2x. Now the constant terms are plus, let me erase this one so that I will have a space. Constant terms are plus 6, okay, minus 54, okay, then plus 108, okay, then minus 60, so minus में आपका कितना हो गया 114, right, 114 minus 114 plus 114. So this also gets cancelled. Okay, so you can see that all the numbers are getting cancelled. So finally what we get here is that px is equals to, so we have got a polynomial now. So that's our final answer. So you can see that how simply we can calculate. Life is still not that comfortable though. It looks like very clumsy, but still our finding out these deltas are helping us. So in the next class, we will see that we will resolve this issue as well. This calculation is becoming little bit complicated. We'll try to make it little bit more easier. Okay. So in the next class, I will show you how to make this calculation a little bit easier. So what we will do is that x minus x0 upon h, we will replace it by a new variable q, and that we will do. So that I think I will be doing in the next class. That is where we will stop, and then it will be helping us in getting the formula. So one can also understand this is what we are trying to resolve, because once I have this polynomial function px, I can find out the derivative p prime x, or once I have this Newton's formula p and x, I can find out its derivative. So in the next class, I will show you how easily you can do. It may look a little bit messy at the moment, but in the next class, you will figure out that these things will become a little bit easier. Okay, so let me put it here. So in the next class, what we'll do is that we'll redefine the term q is equals to x minus x naught by h. So that x minus x1 by h will become x minus x1 is what? X naught plus h, right? So divided by h. So that will become x minus x naught by h plus h by h, that is minus h by h, that is 1. So this will become q minus 1. So this will become q minus 1. So x minus x naught को q से replace कर देंगे, x minus x1 upon h को q minus 1 से replace कर देंगे. ऐसे करते हुए हम अपने फार्मूले में ये जो फार्मूला हमने डेवलप किया था, so this formula which we have developed, इसको हम x minus x naught upon h, x minus x naught upon h into x minus x1 upon h है, तो यहाँ पे q1 q minus 1 ऐसे करते हुए रिप्लेस करते चले जाएंगे, and then this formula become a function of q, and that will be very easy to differentiate. वो बहुत आसान हो जाएगा differentiate करना. So that we will see in our next class. Okay. So I'll stop here. If there are questions, I will definitely address. Okay.